Okay. So, Bache, today we will be beginning our class from activity 6.6. Bache, in activity 6.6, there is a small discussion based on respiration in aquatic organisms. How aquatic organisms show the process of breathing or exchange of gases. Okay. So that is the small discussion that we'll be picking up with. So, bache, activity 6.6, what is said? You have to observe a fish in an aquarium. अब बच्चे हम सब ने fish को देखा होगा, and we know fishes are able to breathe underwater due to presence of gills. They have special respiratory organs which are called gills. और बच्चे fishes के अंदर ये जो respiratory organs हैं, how are they able to exchange gases from water? It is due to these gills only. अगर बच्चे हम वाटर के नीचे ब्रीथ करने की कोशिश करेंगे तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं, आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स, दे आर नॉट एबल टू एक्सचेंज गैसेस विद वाटर. वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है, हमारे लंग्स उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते. ऑलराइट, बट गिल्स which are present in fishes, they are specialized organs and they are helping in exchange of gases between fishes and dissolved water, dissolved oxygen in water. All right. अब अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक मैकेनिज्म है. हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है? गिल्स क्या करते हैं? दे विल कंटिन्यूसली ओपन एंड क्लोज देयर माउथ्स. अब अच्छा, इसके पीछे एक बहुत सिंपल रीजन है. फिशेस क्या करते हैं? दे विल कंटिन्यूसली ओपन एंड क्लोज देयर माउथ्स and they will take in water from their mouth and pass it over the gill slits. वो अपने माउथ से वाटर को अंदर लेके जाते हैं और अपने गिल स्लिट्स के ऊपर पास करते हैं. ओके, ये जो गिल स्लिट्स हैं, इनके अंदर हम क्या देखते हैं? वी सी प्रेजेंस ऑफ गिल्स. अब अच्छे, फिशेस के अंदर गैसेस की एक्सचेंज कैसे हो रही है? when they take in water from their mouth, that water contains dissolved oxygen, and this water is then passed over gills. उस water को gills के ऊपर pass किया जाता है. And when this water is passing over the gills, what happens? Oxygen in water diffuses into the gills. Gills के अंदर blood की supply होती है, तो जो आपका oxygen water के अंदर dissolved है, वो किधर diffuse हो जाएगा? It will diffuse inside the gills. And blood which is flowing inside the gills, it has higher concentration of carbon dioxide. तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के किधर आएगा? वाटर में. So this is how fishes will exchange gases. पर यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. गिल्स तो यूज हो रहे हैं, पर यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है. Fishes have higher breathing rate. Fishes have higher breathing rate. And बच्चे, this is true, and this is true for all aquatic organisms. Organisms which are staying underwater, जो पानी के अंदर ब्रीथ करते हैं, उनका ब्रीदिंग रेट हायर होता है. अब बच्चे, इसके पीछे क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बच्चे, बहुत सिंपल सा यहाँ लॉजिक है. डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज लेस. डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज लेस कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन इन एयर. अगर आप बच्चे कंपेयर करो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन को जो एयर के अंदर प्रेजेंट है और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर है, बच्चे, उन दोनों की कंसेंट्रेशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है. डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज वेरी लेस इन वाटर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इन एयर. तो बच्चे, अगर सही क्वांटिटी में फिशेस को ऑक्सीजन ऑब्टेन करनी है, व्हाट दे हैव टू डू? दे हैव टू हैव अ हायर ब्रीदिंग रेट. अगर आपसे ये पूछा जाता है व्हाई फिशेस हैव हायर ब्रीदिंग रेट, तो इसका सिंपल सा आंसर है. What is the answer? They have to obtain dissolved oxygen from water, and that concentration is less compared to oxygen in air. तो जो terrestrial animals हैं, animals living on land, they will have breathing rate which is lower in comparison to organisms which are living in water. और इसके पीछे रीजन यही है कि ऑक्सीजन जो पानी में डिसॉल्व्ड है वो बहुत कम है. Alright, this is the reason fishes have higher breathing rate. Alright. अब अच्छा, we'll be moving on to terrestrial organisms. Terrestrial organisms which are living on land. अब अच्छा, when you talk about terrestrial organisms, okay,
दे यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अब अजय ऑक्सीजन अगर एटमॉस्फेयर से लेनी है तो उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत है। सो इफ वी टॉक अबाउट हायर एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? lungs are present, all right, and lungs are specialized organs which are helping in exchange of gases between the blood and oxygen which is present in present in the alveoli within the lungs की वजह से ही सरफेस एरिया बढ़ता है, लंग्स की वजह से ही क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो इजिली हो पाती है। ओके, सो बच्चे we'll be picking up the human respiratory system. I'll just quickly show you the diagram. हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग मैकेनिज्म ह्यूमंस के अंदर कैसे अकम्प्लिश होता है वो डिस्कस करेंगे। We'll be talking about different parts of human respiratory system with their functions. But first of all, I'll just give you a quick glance into the human respiratory system. I'll be using the same diagram which is given in your NCERT book. यहाँ इसके अलग अलग पार्ट शो किए हुए हैं। All right. अब बच्चे फर्स्ट इज दी नेसल पैसेज। नेसल पैसेज इज दैट इज जिसको हम सिंपली नोज कह देते हैं। ऑलराइट, नेसल पैसेज इज प्रेजेंट इनसाइड दी नोज। यहां से हमारी एयर एंटर होती है। फ्रॉम हियर दी एयर विल पास इनटू अ पोर्शन विच इज नोन एज फेरिंग्स। अब बच्चे प्लीज रिमेंबर, फेरिंग्स इज कॉमन स्पेस वेयर बोथ एयर, वाटर एंड फूड इज प्रेजेंट। हम जब बच्चे माउथ से फूड को अंदर लेके जाते हैं, व्हाट हैपेंस, फेरिंग्स के अंदर जाता है वो फूड। जब हम ब्रीद इन करते हैं तब हमारी एयर फेरिंग्स में जाती है। तो बच्चे ये एक ऐसी जगह है जहां कॉमन पैसेज है। इट इज अ कॉमन पॉइंट फॉर फूड, एयर एंड वाटर। फ्रॉम फेरिंग्स द एयर विल एंटर लैरिंग्स। लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स। उसके बाद किधर जाएगा फूड, सॉरी नॉट फूड, एयर विल मूव इनटू trachea. Trachea is also known as the windpipe. इसको windpipe भी बोलते हैं। Then this trachea further divides into two parts, bronchi, right and left bronchi. Right bronchus और right bronchus जो है singular है, bronchus हम term use करते हैं singular. Right bronchus will enter your right lung and left bronchus it will enter your left lung. They will undergo further divisions. ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो फर्दर डिवाइड होते जाएंगे। They will form branches called bronchioles and ultimately at the end of bronchioles we have alveoli. Alveoli are also known as air sacs. बच्चे these are the structures. ये वो स्ट्रक्चर हैं जहां क्या हो रहा है, जहां आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये आपका एंड पॉइंट है। All right, so these are the major parts of your respiratory system. We'll be talking about them one by one in detail. पर यहाँ बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है। You might have heard, okay Anisha, you are absolutely right. Coronavirus actually infects the lungs. lungs को कैसे खराब करता है, हमारे एल्वियोलाई वगैरह को इन्फेक्ट करके उनको क्या कर देता है, उसमें निमोनिया हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, एयर एक्सचेंज बंद हो जाती है। That is absolutely right. Okay. So when you talk about pharynx, यहाँ ना एक बहुत यूनिक प्रॉब्लम है। आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा और कई बार आपने सुना भी है होगा कि जब हम खाना खाते हैं, when we are eating food, we should not talk. Okay. अब उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। रीजन इज when we talk, अगर हम खाना खाते वक्त या खाना swallow करते वक्त बोलने की कोशिश करते हैं, क्या होता है, that food or water will enter trachea. अगर हम बोलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमारा फूड या वाटर किधर चला जाएगा, ट्रैकिया के अंदर। एंड बच्चे वी फील सफोकेटेड, वी फील चोक्ड। ऑलराइट, अब बच्चे ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इफ फूड एंटर्स और वाटर एंटर्स इनटू आवर ट्रैकिया वी फील चोक्ड। और बच्चे अगर ये पैसेज क्लियर ना हो तो आपकी डेथ भी हो सकती है, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ इन। अब आप बोलोगे ये प्रॉब्लम तो हमें हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वो तो खाना ट्रैकिया के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो हमारी फूड पाइप है इट इज लोकेटेड बिहाइंड द ट्रैकिया। वजह हमारी विंड पाइप आगे है, फूड पाइप पीछे है।
So when you are eating food or drinking water, it should enter trachea always. पर ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा तो हम ऑब्जर्व नहीं करते. तो इसके पीछे क्या रीजन है बच्चे? ये जो आपकी ट्रैकिया की ओपनिंग है ना, यहाँ एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एपीग्लॉटिस. ओके, देखो हमारी बॉडी में बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. कैसे? ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, व्हाट इट डज, व्हेन यू स्वॉलो फूड और वाटर, दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्लोजेस द ट्रैकिया. और आपका जो फूड और वाटर है इस एपीग्लॉटिस के ऊपर होता हुआ किधर जाता है? इट मूव्स इनटू द फूड पाइप. इट मूव्स इनटू द फूड पाइप. सो अ वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. ये हमारे फूड और वाटर को ट्रैकिया के अंदर जाने से क्या करता है? प्रिवेंट करता है. अगर बच्चे आप बोलने की कोशिश करते हो तो क्या होता है? दिस एपीग्लॉटिस मूव्स बैकवर्ड, हट जाता है, ये ओपनिंग खुल जाती है ट्रैकिया की. फिर क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? योर फूड एंड वाटर इज गोइंग टू एंटर इनसाइड द ट्रैकिया. ऑलराइट, तो ये चीज हमें याद रखनी है. आवर फूड पाइप इज लोकेटेड बिहाइंड द ट्रैकिया. सो व्हेन यू आर swallowing food or water, this epiglottis which is flap like structure, it will cover the opening of trachea. वो trachea की opening को बंद कर देगा. और जब trachea की opening बंद हो जाएगी फिर क्या होगा? What is going to happen? आपका जो food और water है वो food pipe में जाएगा, it will not go into trachea. पर अगर हम बोलने की कोशिश करते हैं, this epiglottis moves back. epiglottis क्या होगा? It will move back and it will lead to opening of trachea. Trachea का जो opening है वो uncover हो जाएगी. So what is going to happen? Your food and water will enter inside trachea and we will feel choked. Okay? तो बच्चे ये एक simple mechanism है. This is a simple mechanism which prevents food or water from entering your windpipe or trachea. Alright? ये चीज याद रखनी है. I hope this is clear to everybody. Okay? अब बच्चे हम क्या करेंगे? We'll be talking about different parts of the human respiratory system and their functions. कि इनका function क्या होता है, एक एक करके हम इनको pick करेंगे. If we can breathe using our mouth, then why nose also to do the same? Okay, Arham, we are coming to that question itself. कि हमें nose से ही क्यों breathe करना चाहिए, mouth से क्यों नहीं करते हैं? Mouth से कर सकते हैं पर उसमें disadvantage होता है. Okay, we'll just come to it. अभी हम discuss करते हैं. So बच्चे, when you talk about parts of human respiratory system, okay, parts of human respiratory system, okay, I'll just, I've forgotten. All right. Okay. Before we jump into parts of human respiratory system, I just wanted to show you the route of human in human respiratory system, the passage of air. कि air कैसे pass होती है. बच्चे, air enters from the environment. Air will enter from the environment. It will pass into the nasal cavities or the nasal passages. यहाँ से air कहाँ जाती है? Pharynx. Pharynx से air कहाँ जाएगी? Trachea. Trachea से air जाएगी bronchi, right and left. Then bronchi will further divide into bronchioles, then alveoli. अब बच्चे, what happens in alveoli? Exchange of gases. Alveoli is the place where exchange of oxygen and carbon dioxide occurs. फिर CO2 किधर आएगा? Bronchioles, bronchi. CO2 will move into trachea, into pharynx, into nasal cavities, and from nasal cavities, carbon dioxide rich air, it is released into the environment. So बच्चे, this is the route. Air will enter. Okay, air will enter which contains oxygen from nasal passages. वहां से air enter करेगी. It will move into nasal cavities, pharynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli. Alveoli is the place where exchange of gases occurs. Alveoli वो place है जहां gases की exchange होती है.
Then carbon dioxide will move into bronchioles, bronchi, trachea, pharynx, nasal cavities, and from nasal cavities, carbon dioxide released into the environment. So this is the flow of air inside the human respiratory system. So बच्चे, what we'll be doing is we'll be starting from nose and we'll be talking about passage of air as it moves from one part to another. ठीक है, और फिर देखेंगे कि इन पार्ट्स के अंदर स्पेशलाइज्ड क्या फंक्शन है. ओके, कितना हर पार्ट का क्या स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, देन विल बी पिकिंग दिस अप. सो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विल बी स्टार्टिंग विद nostrils. Okay, nostrils. What are nostrils? Nostrils are openings. Openings from where air enters inside the nasal cavities या nasal passages. ओके, नॉस्ट्रिल्स हैं बच्चे ओपनिंग्स जहां से एयर नेसल पैसेजेस के अंदर एंटर करेगी. ऑलराइट, उसके बाद सेकंड है, हाँ जी सुनिष्ठ. गुड इवनिंग सर. हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. Good हाउ मच टाइम दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द आवर बॉडी? क्या चीज? हाउ मच टाइम दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी? कितने टाइम में होता है ये प्रॉपर, कितने मतलब हाउ मेनी सेकंड्स? एक चीज ये समझनी है आपको, जब आप ब्रीद इन कर रहे हो और ब्रीद आउट कर रहे हो, ब्रीदिंग रेट तो नॉर्मल आपकी फिक्स्ड है, दैट इज 18 to 22 टाइम्स पर मिनट. अब बच्चे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो लगातार चलता रहता है, ऐसा नहीं होता कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस रुक जाएगा कभी. इट इज अ प्रोसेस विच कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन हैपनिंग, क्योंकि हम ब्रीदिंग तो रोकते ही नहीं है, तो इसमें ऐसा कोई टाइम फ्रेम वाला सिस्टम नहीं है. हाँ, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम, पर इस प्रोसेस को फास्ट कैसे किया गया है या इसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया गया है? बाय प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई. एल्वियोलाई उस सरफेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं जिससे डिफ्यूजन का प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट हो जाए. टाइम फ्रेम जैसा कुछ है नहीं है. क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा ही हो रहा है, इट इज अकरिंग ऑलवेज, उसमें तो कोई स्टॉपेज ही नहीं है. ठीक है, हाँ जी आकृति. गुड आफ्टरनून सर. हाँ जी सर, मेरा एक डाउट था कि सर जो म्यूजिशियंस होते हैं, जैसे सर जो शहनाई प्ले करते हैं, शहनाई या फिर फ्लूट, सर वो कंटिन्यूसली जब उस चीज़ को प्ले करते रहते हैं तो सर फिर वो सांस के कैसे लेते हैं सर? सर क्योंकि उसको बजाने के लिए एयर यूज होती है और एयर वो कंटिन्यूसली देते रहते हैं, तो फिर वो बच्चे आप एक मिनट आप थोड़ा सा क्लियर बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? सर मेरा डाउट है कि जो म्यूजिशियंस होते हैं जो फ्लूट या फिर शहनाई प्ले करते हैं, सर उनको प्ले करने के लिए एयर चाहिए होता है, सर वो अपने माउथ से देते हैं, तो सर वो अगर माउथ से एयर दे रहे बेटा होते हैं. एक मिनट, यू आर सेइंग पीपल हु आर प्लेइंग ऑन विंड इंस्ट्रूमेंट्स. यस सर. ओके, तो बच्चे वो तो एयर को बाहर ब्लो कर रहे हैं, और आपने कभी उन्हें नोटिस किया है? आपको क्या लगता है कि वो लगातार ही एयर ब्लो करते रहते हैं? वो बीच में बच्चे ब्रेक भी तो लेते हैं. आपने देखा नहीं, बीच में ब्रेक लेके सांस अंदर लेते हैं फिर दोबारा, ऐसे थोड़ी वो लगातार ही बजाते जाएंगे, तो ऐसे तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे. सर वो सर आवाज तो मतलब नोटिस नहीं किया, लेकिन बच्चे आप इस चीज को ना एक बार देखिए वीडियो पे ध्यान से. जो लोग फ्लूट भी बजाते हैं वो बीच बीच में बेटा सांस लेते हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि बिना सांस लिए तो वो कैसे जिंदा रहेंगे? हाउ विल दे सर्वाइव? लगातार थोड़ी वो एयर ब्लो आउट करते रहते हैं. हाँ, प्रैक्टिस की वजह से वो हमसे ज्यादा एयर को होल्ड कर पाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो ब्रीदिंग रोक देते. ब्रीदिंग थोड़ी रोकते हैं. इवन सिंगर्स, जो सिंगर्स होते हैं वो बीच में ब्रीथ नहीं करते क्या? थोड़ी देर रुकते हैं बीच में. आप देखिए, लगातार थोड़ी गाते रहेंगे. ऐसे थोड़ी हो सकता है कि 5 मिनट का गाना गाएंगे विदाउट ब्रीदिंग. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो जिंदा कैसे रहेंगे? ठीक है, ओके सर. आप चेक करिए वीडियो ध्यान से, वो बीच में ब्रेक लेते हैं, दे विल टेक इन एयर. कंटिन्यूअसली थोड़ी एयर ब्लो आउट करेंगे.
All right. अर्चिशा दास इज सेइंग सर शंकर महादेवन जी ने ब्रेथलेस किया है गाना। बच्चे ब्रेथलेस गाने का ये मतलब नहीं है कि वो लगातार 5 मिनट्स ब्रेथ उन्होंने बिना ब्रीदिंग के गाया है। बच्चे इट वाज डन इन स्टूडियो, तो वो जो पार्ट्स हैं अलग अलग रिकॉर्ड करके उनको जोड़ा गया है। कैन यू इमेजिन अ पर्सन सिंगिंग फॉर व्हाट 3, 4, 5 minutes without taking breath? Okay, Arham is saying it is about 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes का आई थिंक ब्रेथलेस 2 मिनट का गाना तो नहीं है, उससे ज्यादा ही है। लाइव में भी उन्होंने गाया है। बच्चे लाइव में क्या उन्होंने बिना ब्रीदिंग के गाया है? आई डोंट थिंक सो। आप सोच सकते हो 5 मिनट 4 मिनट कोई बिना ब्रीदिंग के गा सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, वो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है उनको कि वो जब सांस लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता। दिस इज व्हाट इज विद गुड सिंगर्स। ओके, तो बीच बीच में सांस लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि 4-5 मिनट वो बिना ब्रीदिंग के गा लें। दैट इज नॉट पॉसिबल बेटा। हाउ विल द पर्सन सर्वाइव? ओके, चलो। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। Openings from where air enters inside the nasal passages, these openings are called nostrils. अब बच्चे, what is present inside the nasal passages? This is what Arham was asking, कि हम माउथ से ब्रीथ कर सकते हैं तो नोज की क्या जरूरत है? बच्चे, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। When you are eating food और आपको ब्रीथ करना है तो हम नोज के थ्रू ब्रीथ करेंगे। ओके, अगर हमारा माउथ ही एक सिंगल पॉइंट होता जहां से फूड की इंटेक भी हो रही है, एयर की भी इंटेक हो रही है, फिर प्रॉब्लम हो जाती। इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो नोज एक सेपरेट पैसेज है। सेकेंडली, नेसल पैसेजेस के अंदर म्यूकस एंड छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो उसको फिल्टर कर लेते हैं। तो नेसल पैसेजेस या नेसल कैविटीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Nasal passages play a very important role. They show presence of fine hairs. इनके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। ओके, they show presence of fine hairs and mucus. What is the role of hairs and mucus? They help to trap dust particles. They help to filter air and traps dust particles. ठीक है, वो क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं, और वो एयर को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। तो दिस इज द रोल ऑफ नेसल पैसेजेस। ओके, सुनिश्च बोलो। सुनिश्च ऑलराइट, तो ओके, सी Harshpreet, I fully agree. There are free divers who can hold their breath underwater for large amounts of time. जैसे हर्षप्रीत ने लिखा है कि जर्मन फ्री डाइवर है, उसने 22 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स तक पानी के नीचे वाटर के अंदर ब्रेथ होल्ड की है। My question to Harshpreet is, can you do the same? हर्षप्रीत, क्या तुम अपनी ब्रेथ इतने टाइम तक होल्ड कर सकते हो? मैं तो नहीं कर सकता। तो बच्चे, यही तो चीज है। आप लोग क्या करते हो? आप एक एग्जाम्पल ले लेते हो। बच्चे, दे आर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स। यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू फ्री डाइवर्स। फ्री डाइवर, स्कूबा डाइवर, हम उनके साथ अपना कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। वो प्रैक्टिस करते हैं उस चीज की। क्या एक नॉर्मल इंसान 20 मिनट तक अपनी सांस होल्ड कर सकता है? अब आप बोलोगे जी मैराथन मैन 30 किलोमीटर भागता है बिना रुके, तो क्या तुम भाग सकते हो? बेटा, प्रैक्टिस की बात होती है एवरीथिंग। दे प्रैक्टिस, योगा प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, व्हाट नॉट। पीपल आर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। हम क्लाइंब कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देन वी विल हैव अ चांस टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट।
प्लीज डू नॉट स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्फ, मतलब आप ये ना करिए कि अगर मैं बोलता हूँ कि ब्रीदिंग हम होल्ड नहीं कर सकते तो आप मुझे एग्जांपल देना शुरू कर देते हैं कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में। बेटा वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, दे आर फ्री डाइवर्स, उन्होंने उस चीज की ट्रेनिंग की है, प्रैक्टिस की है। हम नॉर्मल जनरल बात करते हैं। अब जैसे हम शंकर महादेवन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप मुझे कह रहे हो कि 4 to 5 मिनट्स उन्होंने लाइव गाया है विदाउट टेकिंग ब्रेथ, नॉट अ चांस। आप इस चीज को थोड़ा सा फॉलो करके देखिए। प्लीज डोंट सिंपली फॉल टू दी ट्रैप कि गूगल पे है तो सही है। बेटा गूगल पे बहुत सारी चीजें फॉल्स भी होती हैं, लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, विकिपीडिया लिखते हैं, देयर आर मेनी इंफॉर्मेशंस व्हिच आर फॉल्स एंड यू हैव टू जज इट लॉजिकली। जस्ट इमेजिन अ सिंगर सिंगिंग फॉर 4 to 5 minutes विदाउट टेकिंग अ ब्रेथ, इज दैट पॉसिबल? चाहे बड़े से बड़ा सिंगर हो, तानसेन को ले आओ, तानसेन जो बहुत बड़े सिंगर थे, आप डू यू थिंक कि वो भी 4 से 5 मिनट गा सकते हैं विदाउट टेकिंग अ ब्रेथ? तो देन हु इज शंकर महादेवन इन फ्रंट ऑफ तानसेन? ठीक है। हाँ, होल्डिंग योर ब्रेथ दैट इज अनदर थिंग, अंडर वाटर डाइवर्स। बच्चे बहुत सारे लोग होते हैं जो 1 से 1.5 मिनट अपनी सांस होल्ड कर लेते हैं, जो स्विमिंग वगैरह करते हैं, पर बच्चे उन्होंने उस चीज की प्रैक्टिस की है। वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स विद देम। ठीक है, इस ट्रैप में मत फंसिए। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दीस नुएंसेस। ये तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको गूगल पे मिलेंगी। ओके, नेसल पैसेजेस। बच्चे इनसाइड द नेसल पैसेजेस देयर इज प्रेजेंस ऑफ फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। अब इनका रोल क्या होता है? दे विल हेल्प टू फिल्टर एयर एंड दे विल हेल्प टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। आई थिंक आई हैव आंसर्ड अरहाम्स क्वेश्चन कि हम माउथ से क्यों नहीं ब्रीथ करते फिर, क्योंकि बच्चे माउथ के अंदर ये फिल्टरिंग नहीं होगी और ये सारे डस्ट पार्टिकल्स आपके कहाँ जाएंगे? लंग्स के अंदर, आपके लंग्स ब्लॉक हो जाएंगे, इतनी डस्ट होती है। तो दिस इज समथिंग विच इज डन इन नेसल पैसेजेस। ऑलराइट, उसके बाद अब नेक्स्ट हमारी एयर कहाँ मूव होगी? फ्रॉम दी नेसल पैसेजेस, फ्रॉम दी नेसल पैसेजेस। ओके, नेसल पैसेजेस से क्या होगा? एयर विल पास इनटू दी pharynx, इट विल पास इनटू दी pharynx, pharynx में पास होगी। ठीक है, it is the common point, you can say it is common space for air, water and food. Okay, it is common space for air, water and food. और यहां क्या है, यूनिक प्रॉब्लम है कि हमारा जो pharynx है, it will lead food and water into the esophagus which is the food pipe and it will lead to passage of air into the trachea. तो ये कॉमन स्पेस है। ऑलराइट, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या सॉल्व होती है, कैसे सॉल्व हो रही है? the food and water, the food and water has to pass into esophagus. The food and water has to pass into esophagus, which is located behind the trachea. Behind the trachea, ये ट्रैकिया के पीछे होती है इसोफेगस। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है कि जो आपका फूड है या वाटर है वो ट्रैकिया में ना जाए, वो कैसे सॉल्व होती है? अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस इज प्रेजेंट। और बच्चे ये क्या रोल करता है? when you have to swallow food and water, this flap like structure will move and it will cover the opening of trachea, which covers trachea, yeah, which covers the opening of trachea, opening of trachea during swallowing.
अब बच्चे अगर हम बोलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, दिस एपिग्लॉटिस विल मूव बैक, और उसकी वजह से क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इफ a person tries to speak during eating or drinking, अगर आप पानी पी रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, उस टाइम आप बोलने की कोशिश करते हो, देन फूड और वाटर, फूड और लिक्विड्स कैन एंटर ट्रैकिया। और बच्चे अगर ट्रैकिया में ये एंटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओके, एंटर दी ट्रैकिया लीडिंग टू चोकिंग। अब बच्चे यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखिए, जब आप बोलने की कोशिश करोगे तब आपका ट्रैकिया खुलेगा, ऑलराइट, या जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तब आपका ट्रैकिया खुलेगा, या जब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं तब आपका ट्रैकिया खुलेगा, ऑलराइट। व्हेन यू आर swallowing फूड, व्हेन यू आर swallowing फूड और ड्रिंकिंग वाटर, जब आपने swallow करना है तब आपका एपिग्लॉटिस क्या करेगा, वो ट्रैकिया को कवर करेगा, नहीं तो तब तक फूड और वाटर तो आपके माउथ कैविटी में ही है ना, बकल कैविटी में ही है, इट इज इनसाइड योर माउथ, इट हैज नॉट रीच फेरिंग्स। जब आपने swallow करना है तब आपका फूड और वाटर फेरिंग्स के थ्रू होता हुआ किधर जाएगा, ईसोफेगस में, तब आपका एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को बंद कर देगा। जब आप फूड या वाटर को माउथ में रखा हुआ है आपने, तो वो कहाँ है, बकल कैविटी में है। जब आपने swallow करना है तब वो फूड और वाटर फेरिंग्स के थ्रू होता हुआ किधर जाएगा, ईसोफेगस में। उस टाइम में आपका एपिग्लॉटिस क्या करेगा, ट्रैकिया की ओपनिंग को बंद कर देगा, ठीक है। सो अरहम, आई थिंक आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। हाउ कैन वी ब्रीथ व्हाइल वी आर swallowing फूड एज एपिग्लॉटिस कवर्स द विंड पाइप। बच्चे जब हम खाना swallow करते तब ब्रीदिंग नहीं होती, उस इंस्टेंट पे ब्रीदिंग नहीं होती, हमारा ट्रैकिया बंद हो जाता है। कैन यू ब्रीथ एंड swallow एट द सेम टाइम, प्लीज गिव इट अ ट्राई, करके देखिए। यू कैन च्यू फूड, you can chew food and breathe, but you cannot swallow and breathe at the same time, that cannot happen, and please don't try it also। अगर करना चाहते हो अपने रिस्क पे तो इट्स ऑल राइट, यू विल फील चोक्ड, क्योंकि आपका खाना या वाटर ट्रैकिया में चला जाएगा। पर जब आप चूइंग करोगे आप ब्रीथ कर सकते हो। जब हम बोलते हैं तब भी हम ब्रीथ नहीं करते बच्चे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हेन यू आर स्पीकिंग यू आर पुशिंग एयर थ्रू योर लैरिंग्स, ठीक है। हम एयर कहां से पुश कर रहे हैं, लैरिंग से। यही तो मैं कह रहा हूं, हम लगातार बोल नहीं सकते, लगातार सिंग नहीं कर सकते, ब्रीथ तो करना ही पड़ेगा ना। इफ यू डू नॉट ब्रीथ विल डाई। ओके, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उस टाइम मैं जब तक बोलता रहता हूं तब तक मैं ब्रीथ नहीं करता, पर जैसे मैं बीच में रुकता हूं तब मैं सांस लेता हूं ना अंदर। ठीक है, ऑलराइट। एंड प्लीज डू नॉट ट्राई दिस, डोंट गिव इट अ ट्राई कि swallow और ब्रीदिंग एक साथ करके देखेंगे। और बच्चे ये जो कफिंग हमें होती है हमारी बॉडी की मैकेनिज्म होती है कि हमें बचाया जा सके, बॉडी हैज इट्स ओन मैकेनिज्म। क्योंकि अगर ये फूड एंड वाटर ट्रैकिया के अंदर रहेगा तो वो ब्लॉक हो जाएंगे और आप ब्रीद नहीं कर पाओगे, एंड इट कैन इवन लीड टू योर डेथ, ठीक है। चलो, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब बच्चे फेरिंग्स से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ रहा है जस्ट ओवर द विंड पाइप, इट इज लैरिंग्स। बच्चे लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स। व्हाट इज लैरिंग्स? लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स। Larynx is also known as voice box. It is also known as voice box. अब अच्छा, फॉर ऑब्वियस रीजंस इसको वॉइस बॉक्स बोला जाता है। क्यों वॉइस बॉक्स बोला जाता है? क्योंकि इसके थ्रू एयर पास होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स।
ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू एयर पास होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स, it contains vocal cords which vibrate on passage of air, vibrate on passage of air. So this is how it produces sound. अब बच्चे from larynx is just situated at the top, it is just situated at the top of trachea. अब बच्चे ट्रैकिया लैरिंग्स से आपकी एयर किधर जाती है? ट्रैकिया के अंदर। अब बच्चे इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, ये जो आपका ट्रैकिया या विंड पाइप है, इसके अंदर एक लेबलिंग दी है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ओके, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, इसका क्या रोल होता है? तो बच्चे जस्ट मोमेंट, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो बच्चे ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं, इनका क्या रोल होता है? बच्चे दे एक्चुअली प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। ये आप नोटिस करोगे कि इनके ऊपर ये रिंग्स बनी हुई हैं, इन रिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? आलोक इज सेइंग इट प्रिवेंट्स ट्रैकिया टू कोलैप्स, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, सो ट्रैकिया और विंड पाइप, इसका क्या रोल है? ट्रैकिया, it leads air into the towards the lungs. Okay, trachea जो है, trachea, it is commonly also known as the windpipe. Okay, it is also known as windpipe, also known as windpipe. जैसे बच्चे फूड पाइप होती है ईसोफेगस, वैसे ही विंड पाइप है ट्रैकिया। ऑलराइट, so it is also known as windpipe, and it shows presence of C-shaped cartilaginous rings. It shows presence of C-shaped cartilage rings. इसके ऊपर C-shaped cartilage rings हैं। अब बच्चे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर ऐसे सी शेप कार्टिलेज रिंग्स क्यों प्रेजेंट है? व्हाट इज द रीजन? बच्चे व्हाई दे शो प्रेजेंस ऑफ सी शेप कार्टिलेज रिंग्स? इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। it helps to prevent collapsing of trachea. It helps to prevent collapsing of trachea when we breathe out. बच्चे इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अगर आप बलून के अंदर वाटर भरो, ओके, इट विल इन्फ्लेट, और उसके बाद बच्चे उस वाटर को निकाल दो, तो आप नोटिस करोगे जो उसकी वॉल्स हैं, दे विल स्टिक टू ईच अदर। बलून की जो वॉल्स हैं वो एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। ऑलराइट, पानी की वजह से वो एक दूसरे से वॉल्स चिपक जाएंगी। तो बच्चे दिस इज द सेम प्रॉब्लम विद ट्रैकिया, क्योंकि ट्रैकिया के अंदर क्या है? ट्रैकिया के अंदर क्या है? ट्रैकिया के अंदर म्यूकस है। ऑलराइट, और ये जो म्यूकस है उसकी वजह से आपकी जो ट्रैकिया की वॉल्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो सकती हैं? स्टिक हो सकती हैं। ऑलराइट, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होती हैं, क्योंकि अगर बच्चे आपकी ट्रैकिया की वॉल्स एक दूसरे के साथ चिपक गई तो बच्चे अगली बार जब आपने ब्रीद इन करना है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे ट्रैकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेज रिंग्स है। ऑलराइट, अब फ्रॉम ट्रैकिया वेयर विल एयर एंटर? एयर विल एंटर इनसाइड ब्रोंकाई, right and left bronchus or bronchi. Okay, so it will further branch out. Okay, right
and left bronchi, right and left bronchi, they will enter right and left lungs respectively. ठीक है, ये कहाँ एंटर करेंगे? राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, they will enter right and left lung respectively. ठीक है, हाँ जी आकृति। सर सर जो अभी आपने बताया कि हमारे नोज के अंदर एक म्यूकस होता है जो डस्ट पार्टिकल्स को एंटर नहीं होने देता हमारे बॉडी के अंदर। तो सर जो हमारे सिर्फ स्टमक में भी एक म्यूकस होता है सर जो हमें HCl से प्रोटेक्ट करता है, हमारे एक थिन लेयर बनकर। सर ये दोनों एक ही या फिर अलग अलग अच्छा, हैं? जितने आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना, जहां भी आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नेसल पैसेजेस हैं, ठीक है, यहाँ सब म्यूकस प्रेजेंट है और केमिकली वो सेम ही है। ठीक है, इंटरनल सारे पार्ट्स में आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स के इंटरनल पार्ट्स हैं वहां आपको म्यूकस मिलेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। तो वो केमिकली वही चीज है, सेम, पर यहाँ ये कुछ और फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या फंक्शन हो रहा है? व्हाट फंक्शन इज हैपनिंग कि यहाँ ये एक तरीके से स्टिकी क्या सरफेस प्रोवाइड कर रहा है जहां आपके डस्ट पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं। अगर आप उसको देख रहे हो माउथ के अंदर, तो उसकी वजह से म्यूकस क्या हो रहा है, म्यूकस फूड को स्लिपरी कर रहा है ताकि वो इजिली क्या हो सके, स्वॉलो हो सके। ओके, तो जहां जहां वो प्रेजेंट है उस हिसाब से उसका फंक्शन है। सर जब हम इनहेल या एक्सेल करते हैं तो इनहेल्ड और एक्सेल्ड एयर मिक्स नहीं हो जाती? सी अनीशा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब हम इनहेल करते हैं दैट इज ब्रीदिंग इन, तो एयर लंग्स के अंदर जाती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो एयर बाहर जाती है। तो मिक्स कैसे हो जाती है? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। इनहेलेशन और एक्सेलेशन तो दो अलग अलग प्रोसेसेस है ना। जब आप इनहेल कर रहे हो तो हवा अंदर जाएगी, जब आप एक्सेल कर रहे हो तो हवा बाहर जाएगी। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेइंग कि मिक्स तो होने का चांस ही नहीं है। जब आप ब्रीद आउट कर रहे हो तो बाहर जा रही है, जब ब्रीद इन कर रहे हो तो अंदर जा रही है। दोनों साइमल्टेनियसली थोड़े होते हैं, दे अकर वन आफ्टर द अदर। ठीक है, ऑल राइट। और हाँ, व्हाई डोंट इनहेल एंड एक्सेल एट सेम टाइम? बच्चे उसके पीछे क्या हमें बेनिफिट होगा? इफ वी इनहेल एंड एक्सेल एट द सेम टाइम, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? व्हाट एडवांटेज वी विल हैव? समझो कि हम ब्रीद इन और एक्सेल एक साथ ही कर रहे हैं, एक नोज से हवा अंदर जा रही है, एक से बाहर जा रही है, उससे हमें क्या बेनिफिट होगा? एक्सचेंज ऑफ गैस करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। लंग्स में गैस कैसे एक्सचेंज हो पाएगी अगर दोनों एक साथ चलेंगे? पहले हम ब्रीद इन करते हैं, गैस एक्सचेंज होती है, फिर यू ब्रीद आउट। ओके, साइमल्टेनियस तो उसका कोई एडवांटेज नहीं है हमें, दे हैव टू अकर वन आफ्टर द अनदर। साइमल्टेनियसली का हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, इट वुड हैव बीन ऑफ नो एडवांटेज। ठीक है, चलो। सो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, दे विल एंटर राइट एंड लेफ्ट लंग रेस्पेक्टिवली। ओके, ऑलराइट। सो राइट एंड लेफ्ट लंग में जो आपका राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई है, इट विल एंटर रेस्पेक्टिवली, वो एक साथ एंटर करेंगे। ओके, अब बच्चे ये जो ब्रोंकाई है, ऑन एंटरिंग द लंग्स दे विल फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। ओके, और ये जो ब्रांचेस बन रही हैं, ये क्यों बन रही है? ताकि सरफेस एरिया को क्या किया जाए, बढ़ाया जा सके। ओके, ब्रोंकाई इट विल फर्दर डिवाइड to form primary bronchioles. There would be further subdivision to form secondary bronchioles. अब डिवीजन होती जाएगी, secondary bronchioles. Okay, further division, tertiary bronchioles. छोटी छोटी पाइप्स बनती जा रही हैं फर्दर। Okay, primary bronchioles they will divide into secondary bronchioles. Secondary bronchioles they will divide into tertiary bronchioles. और ultimately आपको जाके क्या स्ट्रक्चर दिखाई देंगे?
alveoli. Alveoli सिंगुलर इसका होता है alveolus, या इनको हम कॉमनली एयर सैक भी बोल देते हैं, एयर सैक्स. These are small balloon like structures where exchange of gases actually take place. और ये जो बच्चे डिवीजन होती जा रही है, क्यों हो रही है? This is to increase the surface area. Okay, this subdivision occurs to increase the surface area. This division occurs to increase the surface area. To increase the surface area. कोशिश ये है कि सरफेस एरिया को बढ़ाया जाए फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि बच्चे डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और अगर हमें एफिशिएंटली गैसेस को एक्सचेंज करना है तो हमें सरफेस एरिया बहुत ज्यादा चाहिए, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज फर्दर सबडिविजन्स. सो दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ऑलराइट, तो अल्टीमेटली आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे एल्वियोलाई, लंग्स में सॉरी, दे आर एल्वियोलाई, एंड एल्वियोलाई आर फंक्शनल यूनिट्स जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है. तो हर एक लंग में बच्चे यू विल सी मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई. इनसाइड द लंग्स यू विल सी मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई व्हिच आर प्रेजेंट. ऑलराइट, दीज आर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स. जैसे यहाँ देखो ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही है. देयर आर स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर्स. तो अल्टीमेटली बच्चे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? alveoli के अंदर ही होता है. All right, I have just picked up one image wherein we will try to understand how this exchange of gases occurs. बच्चे ये जो मैंने डायग्राम या इमेज पिक किया हुआ है, this is showing exchange of gases in the alveoli. alveoli के अंदर exchange of gases कैसे होता है? तो this image actually represents one alveoli. और बच्चे आपके lungs के अंदर millions of alveoli होते हैं. Inside your lungs, how many alveoli are present? Millions of alveoli are present. अब बच्चे let's try to understand how this exchange occurs. अब बच्चे when we breathe in, ये जो रेड एरोस दिखा रहे हैं आपको, रेड एरो क्या शो कर रहा है? दिस इज शोइंग कि जब हम एयर को ब्रीद इन करते हैं, सो दिस एयर दैट वी ब्रीद इन, इट इज रिच इन ऑक्सीजन, इट इज रिच इन ऑक्सीजन गैस व्हेन वी ब्रीद इन. और आपका बच्चा जो एल्वियोलाई होता है, इट इज सराउंडेड बाय न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज. आपकी जो एल्वियोलाई है, इट इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज. तो बच्चे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ दिखा रहे हैं, ये क्या है? इट इज द ब्लड कैपिलरी. अब इस ब्लड कैपिलरी के अंदर जो ब्लड एंटर करता है, इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दैट मींस इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो ब्लू कलर के आपको आरबीसी दिखा रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग दे कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि ब्लड बॉडी से आ रहा है तो इसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है, ये वाला ब्लड जो यहां सर्कुलेट हो रहा है. और बच्चे लंग्स के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? बिकॉज वी हैव ब्रीथ्ड इन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है. तो बच्चे व्हाट हैपेंस इन डिफ्यूजन? गैसेस विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो बच्चे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, इट विल मूव इनटू द ब्लड सराउंडिंग द एल्वियोलाई इन द कैपिलरीज. ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा ब्लड के अंदर. और बच्चे ब्लड के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो किधर आएगा? एल्वियोलाई के अंदर. और ये वाला CO2 फिर बाहर जाएगा when we breathe out. This is how exchange of gases occurs. When you breathe in, oxygen will be more in alveoli. The blood which is circulating outside in capillaries, it has more of CO2 क्योंकि it is coming from the body. So there will be simple diffusion. Oxygen will move from alveoli into the blood, and from blood carbon dioxide will move into the alveoli. Then this CO2 is removed from the body during exhalation. जब आप breathe out करोगे, ये ऑक्सीजन बाहर जाएगी. तो बच्चे ये डायग्राम आपको बहुत इजी तरीके से समझाता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रही है. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर. ये आपको अब समझ आया होगा कि कैसे एक्सचेंज होता है. दिस इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू एल्वियोलाई. ये एल्वियोलाई की वजह से ही पॉसिबल है. Just sorry. This is possible only due to alveoli. ठीक है? So this is how exchange of gases occurs. I'll just pick this diagram from here. Okay, I'll just put it on the main page. Just a minute. All right. Okay. So exchange of gases is occurring in the alveoli. All right.
दिस इज आवर डायग्राम। तो बच्चे हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हाउ विल वी एक्सप्लेन दिस प्रोसेस? Alveoli helps to increase the surface area. Okay, so when we breathe in, how exchange occurs? When we breathe in, yeah, during inhalation, air rich in oxygen, moves inside the alveoli, ओके। और बच्चे एल्वियोलाई के चारों तरफ जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर कौन सी गैस ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एंड कैपिलरीज, blood capillaries surrounding the alveoli, has more of carbon dioxide. बच्चे why more of CO2? Because that blood is coming from body. कैपिलरीज में जो ब्लड आ रहा है एल्वियोलाई के चारों तरफ, उसके अंदर CO2 ज्यादा क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पीछे उसके क्या रीजन है? क्योंकि वो ब्लड कहां से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम द बॉडी, सो इट हैज मोर ऑफ CO2. अब बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, simple diffusion, exchange of gases occurs between blood and alveoli. और बच्चे यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, अगर आपने नोटिस की होती, ये एल्वियोलाई की वॉल देखो, एल्वियोलाई की जो वॉल है इट इज जस्ट 1 सेल थिक। कैपिलरी की जो वॉल है इट इज ऑल्सो जस्ट 1 सेल थिक। इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। इट इज अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अगर आप जस्ट अ मोमेंट, इफ यू नोटिस ये जो एपिथेलियल टिश्यू इट इज जस्ट 1 सेल थिक। ये एपिथेलियल टिश्यू कितनी थिकनेस है इसकी? इट इज जस्ट 1 सेल थिक। ऑलराइट, एंड दिस 1 सेल थिकनेस एक्चुअली हेल्प्स इन क्विक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। राइट, अनीशा इज सेइंग सो दैट एक्सचेंज आसानी से हो सके। राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी सी इनसाइड द एल्वियोलाई। यहाँ सेल की थिकनेस भी एक सेल की है ताकि जो एक्सचेंज है, डिफ्यूजन है, वो फास्ट हो सके। वी हैव टू मेक दिस प्रोसेस फास्टर और एफिशिएंट, सो दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज। ऑलराइट, सो व्हेन दिस एक्सचेंज अकर्स, जब ये एक्सचेंज होगा तो क्या होगा? एल्वियोलाई के अंदर CO2 आ जाएगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा। ओके, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड exits the lungs, whereas जो आपकी CO2 है, whereas carbon dioxide in alveoli is removed during exhalation. जब हम बच्चे बाहर एयर ब्रीथ आउट करते हैं तो जो एल्वियोलाई के अंदर CO2 है वो रिमूव हो जाती है। इफ यू रिमेंबर, कल हमने एनसीईआरटी के बुक में एक एक्टिविटी की थी वेयर वी हैड टू प्रूव दैट व्हेन वी ब्रीथ आउट CO2 is given out. Okay, so when you breathe out this CO2 which is in alveoli, it is removed from the body. तो बच्चे this is how alveoli helps in exchange of gases. All right, और हमें याद क्या रखना है? There are millions of alveoli which are present in each lung. Okay, it is very important to remember. Alveoli are
structural and functional units of lungs. They are structural and functional unit of lungs. In each lung we have, in each lung millions of alveoli. Sorry, मैं nephrons बोलने लगा था. In each lung millions of alveoli are present. हर एक लंग में बच्चे बहुत सारे alveoli present होते हैं. Just imagine कि surface area कितना ज्यादा है. Okay, I think this fact is also given in the NCERT book. I'll just go back to the NCERT book. बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. अगर हम बच्चे एल्वियोलाई को ओपन कर लें तो कितना सरफेस एरिया कवर होगा? आप इमेजिन करके देखिए कितना सरफेस एरिया कवर होगा. It is given in your NCERT book. I'll just show it to you. Okay, I think it is given as 80 meters square. That's a huge amount of area. ये रहा. If alveoli surface was spread out, it would cover 80 meters square area. Okay, that is huge. Just imagine कि हमारे जो 2 lungs हैं, अगर हम उन alveoli को spread करें तो it will spread to about 80 meters square area. That is huge. और ये इसलिए किया जाता है ताकि exchange of gases को efficient बना सकें. और बच्चे देखो यहाँ एक और बहुत interesting fact है. If diffusion was only to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. अगर बच्चे हम सिर्फ diffusion पे ही dependent होते, simple diffusion, तो बच्चे क्या होगा? आपका जो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है आपके लंग्स से टोस तक कितने टाइम में पहुंचेगा? 3 साल तक. और बच्चे उस टाइम तक तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. तो इस मैकेनिज्म को कैसे इंप्रूव किया जाता है? ब्लड के अंदर बच्चे हीमोग्लोबिन होता है. ब्लड हैज हीमोग्लोबिन, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट. ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए याद रखोगे. हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट. ओके. और बच्चे ब्लड जो होता है वो क्या करता है? इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट की हेल्प से गैसेस को एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करता है और क्विकली ट्रांसपोर्ट करता है. अगर सिंपल डिफ्यूजन पे छोड़ देंगे तो क्या होगा? फिर तो बच्चे 3 साल लगेंगे एस्टिमेटेड. और आपको लगता है उस टाइम तक हम सरवाइव कर पाएंगे? अगर सिर्फ लंग्स से टोस पे जाने के लिए एक मॉलिक्यूल को 3 साल लग रहे हैं, कैन वी सर्वाइव इन दैट सिनेरियो? नो, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. तो बच्चे ये एफिशिएंसी किसकी वजह से आती है? एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से हो पाता है? हीमोग्लोबिन, व्हिच इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर. तो बच्चे यहां हमारा जो मेजर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कंप्लीट हो चुका है. बच्चे आई जस्ट वांट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स. ये भी बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है पूछा जाता है. हाउ आर आवर लंग्स प्रोटेक्टेड? हाउ आर आवर लंग्स protected from damage or injury? डैमेज और इंजरी. बच्चे लंग्स कैसे प्रोटेक्ट होते हैं डैमेज या इंजरी से? बताइए. एनी आइडिया? लंग्स आर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर वेरी डेलिकेट. ये कैसे प्रोटेक्टेड रहेंगे? इनको कैसे बचाया जाता है? बच्चे दे आर एनक्लोज्ड in a rib cage. ठीक है, they are enclosed in a rib cage. एक तो ये स्ट्रक्चर है रिब केज, जो चेस्ट कैविटी के अंदर आपकी बोन्स हैं. रिब केज, एब्सोल्युटली राइट. दीपिका इज सेइंग रिब केज, अनीशा इज सेइंग रिब केज, बिल्कुल सही. सेकेंडली बच्चे जो आपके लंग्स हैं, लंग्स के चारों तरफ, ओके, लंग्स के चारों तरफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स है, विच आर कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन्स. डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन्स are present around the lungs.
अब बच्चे ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स है, इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होता है विच इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड. इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. ठीक है. इनसाइड दीज मेम्ब्रेन्स, inside the pleural membrane, inside the pleural membrane, pleural fluid is present. इसमें कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है? प्लूरल फ्लूइड. ऑलराइट. और बच्चे ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये क्या करता है? व्हाट इट डज? इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. It acts as a shock absorber. ठीक है. ये किस तरीके से वर्क करता है? ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है. अनुरीत, यू कैन लीव दी क्लास बच्चे. आई विल बी जस्ट एंडिंग इन 1 or 2 minutes. अगर किसी बच्चे की स्कूल की क्लासेस हैं, दे कैन लीव. आई विल बी जस्ट एंडिंग द सेशन इन 1 or 2 minutes. So these fluids, pleural fluids which are present inside the pleural membrane, it will act as a shock absorber. ये बच्चे शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है. और बच्चे ये जो शॉक एब्जॉर्बर है क्या करता है? ये हमारे लंग्स को एक्सीडेंट के टाइम बचा के रखता है. अगर बच्चे ये रिब केज ना हो, ये प्लूरल मेम्ब्रेन ना हो, प्लूरल फ्लूइड ना हो, तो हमारे जो लंग्स हैं वो बहुत इजीली डैमेज हो जाएंगे. तो जो उनको प्रोटेक्शन मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है? इट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ लंग्स. ऑलराइट. So this is a simple question that you can answer if asked how lungs are protected from damage or accidents. All right. The pleural fluid present inside the pleural membranes and the rib cage. All right. So bache, this concludes the human respiratory system along with its different parts and functions.